Bismillahirrahmanirrahim. So, in previous week we have started the chapter number 5, which is about the fans, but due to some network problem, वो फिर miss हुआ था. So, we will continue that lecture. So, as we know that why we are studying the fan, like why we are studying pumps. So, as we know that for different agricultural processing operations, some regulated amount of fluids are required. Okay, either that will be in liquid form or it will be air. It will be hot air or cool air, or just it will be required that we have to recirculate some fresh air, okay, into the agricultural product. So for any types of that processing operation, for example, drying, cooling, heating, okay, refrigerating or ventilating, we will have to select the efficient and suitable fan. Okay, जो हमारा रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से हमने फैन को सेलेक्ट करना होगा. जिस तरह हमने पंप की डिजाइनिंग में डिस्कस किया था कि हमें कितना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है और कितने प्रेशर्स पे रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए कितने हॉर्स पावर का पंप आपने इंस्टॉल करना होगा. सो सिमिलर कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड हियर, दैट व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड, व्हाट इज द प्रोसेसिंग ऑपरेशन. ठीक है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन कौन सा है, कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है और कितने प्रेशर पे रिक्वायर्ड है. तो उसके लिए कितने हॉर्स पावर का और कितने डायमीटर का या और कितने रिवॉल्यूशन पर मिनट का फैन जो है वो आपने सेलेक्ट करना होगा. ठीक है, तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट where and why we are using the fan in the agricultural processing. So sometimes the fan can be used for drying purposes. Okay, when we get the agricultural product from the field, so then it is in wet condition, there is some moisture content which we want to remove from it, because if you store that product in wet condition, then there is the possibility that the product may be damaged. Okay, so to improve the shelf life, to improve the storage life of the product, to control the damage and deterioration in the product, we will have to remove some moisture content. That is called the drying. Okay, mean, see, we have two terms. One is the dehydration and second one is the drying. In dehydration, we have to remove the 100% moisture content. Okay, mean when you completely remove, when you remove 100% moisture content from the product, that is called dehydration. And when you remove some specific amount of moisture content from the product, then it is called drying. Okay, so just we have to provide some pressurized air into grains. Okay, and it will remove the moisture content from the product. Yeah, it will make the product dry. Okay, so for drying purposes, we will have to apply the pressurized air. Also, we can apply the hot air, okay, to vaporize the moisture content from the product. So fan will be used. Also, the fan can be used for ventilation purposes, okay, just to keep the inside environment fresh. Okay, if you have a storage house, okay, और वहां पे आपने सपोज फ्रूट्स या वेजिटेबल स्टोर किए हुए हैं, so just for ventilation purposes, for recirculation of fresh air, again we are installing some type of fans. Okay, अगर आप लोगों ने सुने हुए हैं, उसको एग्जॉस्ट भी कहते हैं ना. एग्जॉस्ट जो है, that is a type of fan which can provide fresh air, या which can recirculate the air from a specific environment. Also, the fan can be used for heating purposes. Okay, sometime when we are getting the fruits or some product from the field, वो कच्चे होते हैं, वो properly matured नहीं होते, so then some hot air is provided into their fruits, so then it become ripe.
ओके, वो फिर पक जाते हैं ना हॉट एयर की वजह से। तो प्रेशराइज्ड जो है हॉट एयर जो है दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोडक्ट। ओके, सिमिलरली कूलिंग है टू रिमूव द हीट विच काज डैमेज। अगेन अगर आप स्टोरेज करते हैं ग्रेन्स के, प्रोडक्ट के, ठीक है, तो वो एक बल्क प्रोडक्ट होता है, तो देयर विल बी we can say that the temperature will be more again which can cause damage, so we have to introduce some cool air, some fresh air. Okay, refrigeration. See, as we have discussed the difference between drying and dehydration. Again, dehydration is the complete removal of moisture content from the product. जब आप 100% मॉइस्चर कंटेंट रिमूव कर लें तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, और जब आप सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट रिमूव कर लें तो उसको ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास फिर ये दो टर्म्स भी है, एक कूलिंग है और एक रिफ्रिजरेटिंग है। ठीक है, मीन अगर आप सपोज जो है फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, मिल्क है, any agricultural product, suppose if you keep it below the freezing temperature, तो उसको अगर आप फ्रीज रखें तो ये रेफ्रिजरेशन होगा, और उसको जस्ट अगर आप कूल कर लेना, जस्ट कूल एयर उसको प्रोवाइड करें तो ये कूलिंग होगा। ठीक है, मीन ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है। सिमिलरली एस्पायरेटिंग है। Okay, sometimes this method is locally used in villages just to remove the dust and light particle from the grains. ठीक है, इस तरह क्या करते हैं, पेन लगाते हैं और ऊपर से जो है ग्रेन्स को इस तरह शॉवर करते हैं, डालते हैं, तो यहाँ पे इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो अनवांटेड लाइट पार्टिकल होंगे, वो वहां पे चले जाएंगे। So fan can be used for that purposes to remove the contamination, to remove the dust from the grains. So that is called aspiration. Also, the fan can be used for elevation purposes. Okay, if you have a little bit slopes, and suppose you have performed here one processing operation, and here again you have required some another processing operation, so the product at some belt, yeah, at some level, we have to provide here some pressurized air, so that product will be moved from lower elevation into higher elevation. ठीक है, मीन प्रोडक्ट जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा। मीन ग्रेन्स क्या होते हैं, वो लाइट वेट्स होते हैं ना, ग्रेन का इतना वेट नहीं होता। तो अगर यहां से आप उसको एयर प्रोवाइड कर लेना ब्लोवर्स के जरिए, एग्जॉस्ट के जरिए, फैन के जरिए, तो प्रोडक्ट जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टली भी प्रोडक्ट जो है मूव हो सकता है ना, एक हॉरिजॉन्टल मीडियम है, and for example you apply some pressurized air in the product, just consider one particle या one grain, और यहां से अगर आप उसको एयर अप्लाई कर ले तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। So that is the conveyance, that is the movement, that is the elevation of the particle. Okay, so just keep in mind that aeration, that is also a type of recirculation, yeah, that is the movement of air through the grains. So the fan can be used in these different processing operation, either for drying purposes, ventilation purposes, heating, cooling, refrigeration, aspirating, elevation, conveyance, and aeration purposes. And now being a processing engineer, हमारा जॉब क्या होगा, we have to select the best and economical fan for the installation. Again, two terms will be considered: how much quantity is required and at what pressure, yeah, at what head it is required. So you will have to consider the required horsepower fan. Okay, यही सिलेक्शन होगा, किस पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है, कितना एयर रिक्वायर्ड है और कितने हेड पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, जी मुराद भाई। सर ये ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के में जो फर्क है वो थोड़ा सा Dehydration mean if you completely remove the moisture content from the product, mean 100% आप उससे moisture content remove कर ले तो डिहाइड्रेशन कहते हैं। बोन ड्राई कंडीशन कहते हैं,
ठीक है। और ड्राइंग जो है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, माइक ऑफ कर ले मुराद। इफ यू हैव एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फॉर एग्जांपल उसमें 30% मॉइस्चर कंटेंट है, now suppose you have reduced the moisture content to 20%, that is called drying. We have just removed the 10% of moisture content. इसको क्या कहते हैं? इसको ड्राइंग कहते हैं। और अगर आप ये 30% मॉइस्चर कंटेंट जो है ना, इसको आप जीरो कर लें तो आपने डिहाइड्रेशन कर दी। इफ यू कंप्लीटली रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट, इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। और अगर आप सम स्पेसिफिक क्वांटिटी रिमूव कर ले, उसको ड्राइंग कहते हैं। क्लियर जी मुराद? क्लियर शो जी सर, अगर कोई मतलब अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट है उसमें वाटर न भी हो और दूसरा सॉल्वेंट हो और हम उससे वो निकाल लेते हैं, तो ये ड्राइंग में आएगा या डिहाइड्रेशन में? नहीं, वाटर जब आप रिमूव करते हैं तो ये ड्राइंग या डिहाइड्रेशन होगा ना। और नहीं सर, सॉल्वेंट और मतलब जी सॉल्वेंट तो और भी हो सकते हैं ना। नहीं, ड्राइंग और तो डिहाइड्रेशन जो है दे आर जस्ट रिलेटेड विद वाटर, नथिंग एल्स। ठीक है। ये सर ये मैंने एक डिफिनीशन पढ़ी तो इसमें ये कहा है कि अगर दूसरा सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट जो भी हो, अगर हम उसको रिमूव करते हैं तो इसको इसकी जब तो इसको कहते हैं ड्राइंग, और जब स्पेसिफिकली हम वाटर को रिमूव करते हैं तो इसको डिहाइड्रेशन। ना ना ना, प्रोसेसिंग में हम जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की डिहाइड्रेशन कहते हैं, या जनरली जो डिहाइड्रेशन होता है वो कंप्लीटली रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट है, उसको बोन ड्राई कंडीशन कहते हैं। ये देखिए, ये मैंने जो लिख दिया ना, बोन ड्राई यस कंडीशन की कंप्लीटली इसको ड्राई कर डिहाइड्रेशन है। एंड इफ यू रिमूव सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, उसको आप मीन मॉइस्चर कंटेंट को आप जीरो ना करें ना, उसको फिर ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग लैंग्वेज में। अब अगर सपोज कोई और सब्जेक्ट है तो उसमें डिफरेंट हो सकता है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन और कूलिंग का ये कंसेप्ट है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नाउ also you people may have heard the different names like fan, blower, compressor, exhaust. So these are the different interchangeable term which are used. ठीक है, लेकिन फंक्शन सेम ही होगा, जस्ट वी हैव टू प्रोवाइड द एयर इनटू अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। या एक इन्वायरमेंट से आपने एयर को आउट करना है, या उस इन्वायरमेंट को आपने एयर एंटर करना है। सो फॉर दैट पर्पसेस दीज डिफरेंट equipments are used: fan, blower, compressor, exhaust. Now according to the American Society of Mechanical Engineers, if that type of equipment operate at a pressure of less than 1 psi, and we have discussed in our first lecture that 1 psi is equal to 27.7 inches of water. Okay, so if an equipment mean fan, blower, compressor, exhaust, anything, if it operate at a pressure less than 1 psi, then it will be considered as a fan. Okay, या उसको blowers भी कहते हैं, exhaust भी कहते हैं। And if it operate at a pressure greater than 1 psi, then it is called compressor. इसमें पॉइंट ये है कि अगर अगेंस्ट द हाइयर प्रेशर वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो देन द डेंसिटी, द यूनिट वेट ऑफ द एयर विल बी चेंज। वो फिर चेंज होगा, उसमें वेरिएशन आएगा स्पेसिफिक वेट में। जितना आप उसको ज्यादा प्रेशर मीन अगर हाइयर प्रेशर आप एयर अप्लाई कर रहे हैं, so then the variation may be occurred in the specific weight of the air. Okay, तो उसको फिर compressors कहते हैं। And if the pressure is less than 1 psi, then उसमें उतना वेरिएशन नहीं होता फिर स्पेसिफिक वेट में, तो then it is called the fan. Okay? See, जो fact है behind the classification, that is the variation in the specific weight, and that must be recognized and considered in compressors, whereas in fan it is of minor importance। और fan में फिर हम वेरिएशन इन स्पेसिफिक वेट जो है उसको नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, so whenever the air is applied at a pressure greater than 1 psi, then it will be called as a compressor,
and whenever the pressure is applied at a pressure less than 1 psi, then it is called fan. ठीक है जी मुराद? सर ये प्रेशर जो है ये एनवायरनमेंट की प्रेशर की बात हो रही है या जो हम प्रेशर हमें रिक्वायर्ड होता है इसकी बात? नहीं, जो जितने प्रेशर पे ये कंप्रेसर जो है एयर को पुश कर रहा है, ठीक है? यस सर, ओके सर. Now we have different classification of fan based on the working and operation. These are just the names, okay, just for your information purposes. We are not interested in the detail of these things. We are just interested in the selection of the economical and suitable fan for our requirement. Okay, so the fan may be classified as based on the type, based on the design. Okay, so but based on the working and operation, there are mainly three types of fans. One is the axial fan और प्रोपेलर फैन. फिर उसकी दो टाइप्स हैं, ट्यूब एक्सियल फैन, वेन एक्सियल फैन, एंड सेकंड जो मेजर है दैट इज द क्रॉस फ्लो फैन, एंड थर्ड वन इज द सेंट्रीफ्यूगल फैन. So you see from the name, the concept can be clear. Axial flow fan is that one in which the air is moving parallel to the shaft. ठीक है, सपोज ये फैन है ना, तो इसका जो शाफ्ट है, if the air moving parallel to the shaft of the fan, that is called the axial fan. ठीक है, and see when the air is coming like this one, और इस इन ब्लेड्स की जरिए वो इस तरह रोटेट हो कि इस तरह आउट हो जाए, that is called the tubular fan. मीन एक ट्यूब में आ रहा है, ठीक है, और ये क्या है, उस शाफ्ट को परपेंडिकुलर है इसका मोमेंट, शाफ्ट इस तरह होगा और एयर का मोमेंट मीन एंट्री और आउट इस तरह है. और एक सेंट्रीफ्यूगल है कि एयर जो है वो पैरेलल टू द शाफ्ट एंटर हो जाए और लीव जो है वो टेंजेंशियली हो जाए. गैस या एयर का जो आउटिंग है ना वो टेंजेंशियल हो. जिस तरह सेंट्रीफ्यूगल पंप के मोटर में जो वाटर आ रहे और फिर वो लीव हो रहे, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल और radial flow fan. Mean when the air enter into the fan axially but leave tangentially, that is called centrifugal fan. तो अब सपोज हमारे जो नॉर्मली जो फैन होते हैं ये कौन से टाइप्स में होंगे, ये जो सीलिंग फैन होते हैं, एक्सियल होंगे या क्रॉस फ्लो होंगे या सेंट्रीफ्यूगल होंगे? एक्सियल होंगे सर. एक्सियल होंगे. सी उसका जो एयर मोमेंट है दैट इज पैरेलल टू द शाफ्ट. ठीक है, ये जो है दैट इज एक्सियल वन, ये ट्यूबुलर है और ये जो है ये सेंट्रीफ्यूगल है. ठीक है, अब देखें एक्सियल फ्लो फैन और प्रोपेलर फैन. सो इन दिस टाइप एयर फ्लो इज पैरेलल टू द शाफ्ट और एक्सेस. ठीक है, मीन ये इसका शाफ्ट है या एक्सेस है, तो ये आउटसाइड से एयर एंटर करके फैन के जरिए इसको प्रेशराइज करके पुश करते हैं, बट पैरेलल टू द एक्सेस, पैरेलल टू द शाफ्ट. ठीक है, and then it is different assembly. Either there will be two blades or more blades. Here you can see that it has 4 blades. यहाँ पे 5 blades हैं. नॉर्मली जो सीलिंग फैन होते हैं उसकी 3 blades होते हैं. ठीक है, तो मिनिमम 2 blades होंगे और मैक्सिममली जो blades हैं that will be depend on the requirement. Having wrapped blade for better efficiency. You people may have seen that ये ब्लेड जो होते हैं ना ये एग्जैक्टली प्लेन और स्ट्रेट नहीं होते, ये इस तरह ये जो है अक्सर रैप्ड होते हैं, इस तरह थोड़े से टेढ़े होते हैं. ठीक है, फॉर बेटर एफिशिएंसी टू बेटरली पुश द एयर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, आल्सो सच टाइप ऑफ फैन हैव क्लोज्ड रेडियल क्लियरेंस. क्लोज्ड रेडियल क्लियरेंस मीन द गैप बिटवीन द टिप एंड द केसिंग. ठीक है, ये जो केसिंग है ना, केसिंग और ये जो ब्लेड है इनके दरमियान जो गैप है दैट इज कॉल्ड द रेडियल क्लियरेंस. नाउ सी एयर जो होता है वो तो पैरेलल टू द शाफ्ट मूव होता है ना, पैरेलल टू द शाफ्ट होता है.
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ओपनिंग की जरूरत नहीं होती, तो अक्सर ये जो है ये क्लोज्ड होते हैं। यहाँ पे देखिए इस पेन में देखे ना, blades are exactly nearer to the inside surface of the casing। ठीक है, इसको रेडियल क्लियरेंस कहते हैं। Operate against higher pressure, so such type of fan can be used to operate at higher pressure, and they may be sheet steel or airfoil shape। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों फिगर के ब्लेड्स में डिफरेंस है। ये वाला ब्लेड देखे और ये वाला ब्लेड देखे, इसको शीट ब्लेड कहते हैं, और ये एयर फॉइल शेप है। ठीक है, इस तरह राउंड शेप होता है उसका फेस, ब्लेड का जो फेस है ना, ये इस तरह राउंड शेप का होता है, दैट इज कॉल्ड द एयर फॉइल शेप। ब्लेड्स में भी नैरो और वाइड एंड स्ट्रेट। ठीक है, इसके जो ब्लेड्स होते हैं ना ये स्ट्रेट होते हैं, अक्सर इसका काफी वेट भी होता है। तो जस्ट यू कैन लुक इनटू योर सीलिंग फैन, that is a type of axial flow, yeah, that is a type of propeller fan। okay, and may have uniform or varied pitch। ये ये जो ब्लेड है ना उसमें जो ट्विस्ट होता है, that is called the twist angle, या that is called the twist of blade, या that is also called the pitch of fan। ठीक है, सो ये जो फैन्स होते हैं ना उनकी जो ब्लेड्स है ये अ लिटिल बिट ट्विस्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड पिच। ठीक है, सो अगेन दैट विल बी डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी, या पिच जो है दैट इज रिलेटेड विद द एफिशिएंसी। ठीक है, यूज्ड टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर अगेंस्ट लो हेड। नाउ सी दैट इज द रिकमेंडेशन ऑफ सच टाइप ऑफ फैन इफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड एट लो हेड, then such type of fan will be considered। ठीक है, तो आप देखिए ना हमारी जो घरों में जो पंखे लगे होते हैं उसमें हमें ज्यादा हवा रिक्वायर्ड होती है, न कि ज्यादा प्रेशर। ठीक है, सो एट लो हेड इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर सच टाइप ऑफ एक्सियल फ्लो फैन विल बी रिकमेंडेड। तो अब आपके ख्याल में कौन से प्रोसेसिंग ऑपरेशन के लिए ये रिकमेंडेड होगा, आप बताइए। पहले हमने जो डिफरेंट प्रोसेसिंग डिस्कस की ना, तो कौन से प्रोसेसिंग के लिए, कौन से ऑपरेशन के लिए सच टाइप ऑफ एयर जो है ये रिकमेंडेड होगा? जी सर अगर हम ग्रेन को मूविंग के लिए जो होते हैं उसके लिए वो ज्यादा ये मूविंग, अब देखें ना मूविंग में प्रेशर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, यस सर, वॉल्यूम नहीं रिक्वायर्ड होगा, तो उसमें ये रिकमेंडेड नहीं है। यस सर। जी अजमल खान अभी दिए। जी मैंने जस्ट चेक करना है कि कोई है कि नहीं। मफीदुल्लाह जी, शाफहद आर यू देयर? सर नफीस ने मैसेज किया सर कि उसका माइक काम नहीं कर रहा था। सो बताएं ना कोई कि किस कौन से प्रोसेसिंग ऑपरेशन में यूज होगा। सी एट द एंड मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दी ना कि द फैन विल बी यूज्ड फॉर व्हेन लार्ज वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड एट लो हेड। तो कौन से प्रोसेसिंग में यूज होगा, प्रोसेसिंग ऑपरेशन में? जी बताइए ना यार। कूलिंग में हारिस, वेस्ट कूलिंग भी हो सकता है, जस्ट वेंटिलेशन भी हो सकता है, रिसर्कुलेशन भी हो सकता है ना, जस्ट हमने फ्रेश एयर प्रोवाइड करना है। तो फ्रेश एयर अगर कन्वेक्शन के लिए भी हो सकते हैं। फ्रेश एयर अगर आपने जी सजाद, अगर फ्रेश एयर आपने प्रोवाइड करना है तो उसमें हमें क्वांटिटी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, न कि प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। यस सर। नेक्स्ट जो है दैट इज द ट्यूब एक्सियल फैन। These are the type of the axial fan। Again, concept is same, that the air will be moved parallel to the shaft। ठीक है, तो अब देखिए ये पूरी ट्यूब में बंद है ना, तो एयर जो है
पैरेलल टू द शॉप इस तरह मूव होगा, बाहर से आके फैन के जरिए वो प्रेशराइज्ड होके आगे की तरफ पुश होगा, ठीक है। एंड यू कैन सी ये जो है दैट इज कॉल्ड द रैपिंग ऑफ द ब्लेड। ये ब्लेड जो है ये इस तरह टेढ़ी होते हैं या ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है, दैट इज फॉर बेटर एफिशिएंसी। So a tube axial fan consists of an axial flow wheel within a cylinder, ठीक है। इस तरह एक सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं कि जो एयर है ना वो प्रॉपरली स्ट्रीमलाइंस हो जाए, बाहर से जो एयर सक हो रहा है इनसाइड की तरफ कि वो प्रॉपरली एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में अंदर आ जाए ना, वो डायरेक्ट होगा पैरेलल टू द शॉप। और फिर फैन के ब्लेड्स का क्या काम होगा कि वो उसको आगे डायरेक्शन में पुश कर ले, ठीक है। ट्यूब एक्सियल फैन। नेक्स्ट जो टाइप है उस एक्सियल फैन का, दैट इज द वेन एक्सियल फैन। तो इसकी ये जो ब्लेड्स होते हैं ना इसका लेंथ ज्यादा होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ मोस्टली ऑफ कंप्रेसर, बिकॉज यहाँ पे जब एयर एंटर हो जाए ना तो ये ब्लेड का लेंथ ज्यादा है, सो कंटेक्ट ऑफ एयर विद द ब्लेड विल बी मोर। और जितना एयर जो है ब्लेड के साथ कंटेक्ट होगा उतना ज्यादा एनर्जी जो है वो एयर को ऐड होगा, ठीक है। सो दैट इज देन कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ कंप्रेसर बिकॉज इट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ एयर एंड कंसिस्ट ऑफ एन एक्सियल फ्लो व्हील विद इन सिलेंडर, ठीक है। इसमें ये गाइडेड वेन्स कहते हैं, जस्ट एयर एंटर हो जाए ना तो यहाँ पे लेंथ बहुत ज्यादा है, तो सपोज अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो सम प्रेशर विल बी एडेड हियर, ये इस तरह रोटेट हो रहा है ना, इस तरह रोटेट हो रहा है, तो पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो काफी प्रेशर उसके साथ ऐड होगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द वेन एक्सियल फैन। नेक्स्ट जो जो मेजर टाइप है, सी तीन टाइप्स है एयर की, एक्सियल सॉरी थ्री टाइप्स है फैन की, एक्सियल फैन, फिर उसके दो टाइप्स हैं, ट्यूब एक्सियल फैन, वेन एक्सियल फैन, ठीक है। सेकंड जो मेजर टाइप है दैट इज द क्रॉस फ्लो और टेंजेंशियल फैन। ये भी अ टाइप ऑफ कंप्रेसर हो सकते हैं। देखिए ये एयर जो है रेडियली एंटर होता है और टेंजेंशियली आउट होता है, ठीक है। तो इसका लाइफ जो है शॉर्ट लाइफ होता है बिकॉज एक्सियल एंड सेंट्रीफ्यूगल फैंस जो है उसकी इफिशिएंसी और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, नॉइस उसकी कम होती है, ठीक है। तो ये एक ओल्ड मॉडल है, ठीक है। और फ्लो जो है दैट मूव्स ट्रांसवर्सली, या यू कैन से दैट द एयर, सी इन एक्सियल फैन द एयर एंटर parallel to the shop and also the air leave the fan parallel to the shop, okay. But in this fan the air enter radially into the fan and leave tangentially, okay. Discharge can be uniform, when uniform discharge can be we can say that pushed into the in the forward direction. High air rate is compared to the speed, in air rate mean the velocity, okay. जो जो एंटर होता है ना एयर इसमें उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज्ड होता है। एनसी ये जो व्हील है या ये जो पेरिफेरी है इसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा और एयर का जो वेलोसिटी होगा, द एयर वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन दैट वन बिकॉज ऑफ द लो डेंसिटी, या वी कैन से ओके ज्यादा कांटेक्ट की वजह से एयर के जो पार्टिकल है उसको ज्यादा प्रेशराइज्ड होंगे। हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर फैन, again such type of fan can be used for the this condition, okay. Sometimes the air which is provided for the in the bakery oven या just to dry some equipment, okay. Suppose अगर अक्सर क्या करते हैं पेंटिंग करते हैं ना, तो पेंटिंग को अगर आपने फिर ड्राई करना है तो such type of fan can be used, that is a type of blowers, okay, type of blowers होते हैं ये, ठीक है। और जो मेजर टाइप है that is the centrifugal or radial flow fan. So again the concept is the air enter into the fan parallel to the shock and leave the fan tangentially,
ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन इट्स वर्किंग, कि एयर किस तरह एंटर हो रहा है और किस तरह लीव हो रहा है। ठीक है, so when the air enter parallel to the shock and leave tangentially, then it will be called centrifugal fan. And when the air enter radially and leave tangentially, that is called the cross flow fan. And when the air enter and leave parallel to the shock, then it is called axial fan. Okay, so just conceptually इसके जो names हैं और एयर का जो मोमेंट है ये माइंड में रखें। ठीक है, अगेन क्या होता है इसमें, जस्ट एक रोटर होगा सिमिलर लाइक दैट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, लाइक देयर वी हैव एन इम्पेलर। ओके, so the air enter parallel to the shock, makes 90-degree turn and discharge from the wheel in the tangential manner. Here that is not the radial. ठीक है, एक्सियली तो वो एंटर हो जाते हैं ना, वो फिर रोटेट हो के टेंजेंशियली लीव होता है। ठीक है, फिर उसकी तीन टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द ब्लेड्स। वन इज कॉल्ड द फॉरवर्ड, द रेडियल एंड द बैकवर्ड। यू कैन सी दैट सपोज if the fan is moving in this direction, our blade का जो फेस है वो in the direction of movement हो, then it is called forward curved blade fan. Okay, and when the fan is moving suppose in this direction और blades जो है वो इस तरह है, then it is called backward curved blade fan. And suppose if the blades are straight, then it is called radial or straight or double curved blade fan. Okay, here you can see that normally अगर आप लोगों ने देखे हुए such type के, अब देखिए if the blades is moving in this direction या if the fan is moving in this direction और blade की direction को आप देखें, blade ये face है और ये back है। ठीक है, so this is called the forward curved blade fan. Here you can also see that the fan is moving in this direction और blade का direction भी इस तरह है, so that is called the forward curved blade fan. Sometimes इसमें जो blades होते हैं that are up to 60. Here you can see we have 5 blades. Here we have a number of blades. So maximum इसमें 60 blades हो सकते हैं। Narrow in radial dimension. ठीक है, see the narrowance is depend with the number of blades. अगर number of blades increase ज्यादा है तो वो narrow होंगे, फिर उसका weight फिर कम होता है। ठीक है, wide parallel to the shock and facing forward in the direction of rotation. ठीक है, मीन blade का जो face होगा ना, that will be in the direction of rotation. मीन ये face है और ये उसका बैक साइड है। ठीक है, again that is a type of low speed fan and that is capable of operating at several inches of pressure. मीन हायर प्रेशर के अगेंस्ट ये ऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मीडियम प्रेशर के अगेंस्ट जो है ये ऑपरेट कर सकते हैं, एयर को प्रेशराइज्ड कर सकते हैं। ठीक है, और लिमिटेशन ये है कि it can handle the clean air. Suppose if there is some dust particle or clay particle or soil particle, so you can see that फैन जो है ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, तो अगर एयर में कोई पार्टिकल है तो ये ब्लेड को फिर डैमेज कर सकता है। ठीक है, ये नॉइस जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस वजह से दिस इज अ टाइप ऑफ the fan which will be used for the clean air. Okay, then we have the radial, straight or double curved blade fan. ठीक है, जैसे देखें ना कि ये जो ब्लेड है जब ये स्ट्रेट हो, जस्ट कर्व्ड ना हो, तो इसमें तकरीबन 6 से लेकर 20 ब्लेड्स होते हैं। 2 to 3 टाइम जो है इसका
लॉन्गर होते हैं, मीन ये इसका जो लेंथ है ना ब्लेड का, that will be 2 to 3 टाइम फ्रॉम द वेट। ठीक है, ये जस्ट डायमेंशन है उसकी। यूजुअली हैज लार्जर हाउसिंग देन द अदर, मीन इसका जो हाउसिंग होते हैं ना, जो केसिंग होते हैं, एंड इट कैन हैंड वो लार्जर होते हैं, एंड इट कैन हैंडल डर्टी एयर। Okay, suppose if there is some impurities or dust particle in the air, so then it can easily handle it। ब्लेड जो है वो करोड़ नहीं होते, तो पार्टिकल अगर यहाँ पे आ जाए तो इजीली डायरेक्ट हो सकता है, वो ब्लेड को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। कैन मूव मटेरियल विद इन एयर, मीन सपोज इफ देयर इज सम मटेरियल या सम पार्टिकल इन द एयर, देन इट कैन बी मूव बाय सच टाइप ऑफ फैन। ठीक है, देन वी हैव द backward current blade fan। Now here you can see that the fan is moving in this direction, और ब्लेड जो है वो फेस उसका अपोजिट है, तो इसको बैकवर्ड ब्लेड फैन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर सर ये वैक्यूम क्लीनर भी फैन में आता है सर? यस, तो क्या करते हैं एक्चुअली, वो एयर प्रोवाइड नहीं करते ना, वो सक करता है। ठीक है, वो एक ये ना वो वैक्यूम, वो ब्लोवर जो है ना, ब्लोवर क्लीनर देखे हुए अक्सर, जो डस्ट वगैरह लोग साफ करते हैं उसे, वो फैन में आ जाते हैं। ठीक है, और वो जो है टाइप आप सेंट्रीफ्यूगल फैन में या जो है क्रॉस फैन में आ सकते हैं। जो वैक्यूम क्लीनर है वो तो सकिंग करता है, वो फैन में नहीं आ सकता। फिर हाँ, इस तरह है, अगर एक साइड पे सकिंग कर दे और दूसरे साइड पे आउट कर ले तो फिर फैन में आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो एक डस्ट को सक कर इनसाइड स्टोर कर ले तो वो फिर फैन में नहीं आ सकता। ठीक है सर, उसके साथ भी मेरे ख्याल में फैन लगा होता है ना सर, वो सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में यूज होता है ना, जिस वो तरह जस्ट का हम। सकिंग करते हैं ना, एयर को डिस्चार्ज नहीं करता फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फैन जो होते हैं उसमें एयर का एंट्री और आउट होगा, दोनों फंक्शंस होंगे कि एयर किस तरह एंटर हो रहे हैं, ब्लेड तक एयर किस तरह आ रहा है, और ब्लेड से एयर किस तरह जा रहा है, दो डायरेक्शंस होंगे। वैक्यूम क्लीनर जो उसमें अक्सर क्या होता है, एयर वो सक करते हैं लेकिन लीविंग जो है उसमें नहीं होता, वो स्टोरेज उसमें होता है फिर। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, सो जो बैकवर्ड करोड ब्लेड फैन है, सी इफ द डायरेक्शन इज दिस वन, और ब्लेड जो है वो इस तरह है। ठीक है, फेस जो है अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। इसमें तकरीबन 12 ब्लेड्स हो सकते हैं। ठीक है, फ्लैट एंड टिल्टेड बैकवर्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिस तरह हमने डिस्कस की ना, रोटेशन की डायरेक्शन से बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। हाई स्पीड टाइप ऑफ फैन है। अगेन मीन इसकी जो सपोज अगर यहाँ पे पार्टिकल है ना, तो ये ज्यादा प्रेशराइज्ड होगा, इससे ज्यादा स्पीड का एयर जो है वो आउट हो सकता है। हाई इफिशिएंट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव, एंड दैट इज अगेन रिकमेंडेड फॉर क्लीन एयर। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स है सेंट्रीफ्यूगल फैन के, फॉरवर्ड फैन, बैकवर्ड एंड रेडियल। ठीक है, now that was just the introduction of fan, that what is fan, किस लिए या किस तरह हम उसको यूज कर सकते हैं प्रोसेसिंग ऑपरेशन में, and what are the different types of fan, just up to the names। okay, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। now we are interested in this thing, that how we will select the required fan for our required processing operation। so the जो प्रोपेलर फैन है या एक्सियल फैन है, that is actually what, that is a type of air screw। ठीक है, सपोज अगर आप फैन लगाए ना यहाँ पे, तो क्या करते हैं, एयर को इस तरह सर्कुलेट करते हैं ना स्क्रू फॉर्म में, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव होता है। तो फैन इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, एयर स्क्रू। ठीक है, अगर आप देखें ना, अगर फैन है उसके साथ आप एक सपोज एक कपड़ा अटैच कर ले या कोई लेंथी चीज अटैच कर ले, और फैन जब आप ऑन कर ले तो वो क्या करता है, उस तरह स्वायरलिंग करता है। ठीक है, स्क्रू टाइप में वो। सो एयर भी उसी तरह
फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है फैन से। समझ आ रहा है ये पॉइंट? सपोज ये फैन लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे नीचे जो एयर आएगा ना, तो एयर इस तरह मूव होता है, सी ट्वायरलिंग में, इसको एयर स्क्रू कहते हैं, ठीक है। द ट्विस्ट और एंगुलरिटी ऑफ द ब्लेड इज कॉल्ड पिच। नाउ जो ब्लेड की जो ट्विस्टिंग होती है इसको पिच कहते हैं, एंड दे पिच इज रिलेटेड विद द डिस्टेंस थ्रू विच द एयर विल ट्रेवल। कि एयर कहां तक ट्रेवल करेगा, दैट इज डिपेंड ऑन व्हाट, दैट इज डिपेंड ऑन द ट्विस्ट ऑफ ब्लेड, ठीक है। जितना ट्विस्टिंग ज्यादा होना तो एक रोटेशन में एयर जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो दैट ट्विस्टिंग इज कॉल्ड द पिच। एंड आल्सो अगर ब्लेड एक रिवॉल्यूशन कर लेना, मीन फैन जो है वो एक रिवॉल्यूशन कर लेना, तो सपोज अगर यहाँ पे एयर है वो लीनियरली यहां तक आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड पिच, एंड दैट विल बी रिलेटेड विद द ट्विस्ट ऑफ द ब्लेड। जितना ब्लेड का ट्विस्टिंग ज्यादा होगा उतना एयर मोमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। The distance the air will be moved when turning the rotor when one revolution। जब फैन एक रिवॉल्यूशन कर लेना तो एयर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा that will be called the pitch। and also the pitch is also called the twist of blade में जो twist होता है। and numerically that pitch is equal to 2 pi r tangent alpha, ठीक है। इसमें r जो है या अल्फा जो है that is the angle of twist। ये ब्लेड जो ट्विस्ट होता है ना, टिल्टेड होता है, उसका एंगल कितना है। तो यू कैन सी कि अगर रेडियस जो है फैन की ब्लेड का वो तो कांस्टेंट होता है ना, तो p क्या होगा, that will be directly proportional to the अल्फा। जितना ट्विस्टिंग ज्यादा हो उतना एयर मोमेंट या डिस्टेंस थ्रू विच द एयर विल मूव वो ज्यादा होगा, ठीक है। एंड आल्सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर दो फैन है उनकी ट्विस्टिंग कांस्टेंट है, तो जिस फैन का रेडियस ज्यादा होगा उसका पिच भी ज्यादा होगा। या इस कॉन्सेप्ट को आप एक फैन पे अप्लाई कर ले। सपोज अगर आपके पास एक फैन है, ठीक है, तो जो एयर, सपोज अगर एक पार्टिकल यहां पे है और एक पार्टिकल यहां पे है एयर का, आप सपोज फैन एक रोटेशन कर लें तो कौन सा पार्टिकल जो है दूर जाएगा, डिस्टेंस कौन सा पार्टिकल ज्यादा कवर करेगा। जी बताए ना, ठीक है। अगर एक फैन है ना तो ब्लेड का ट्विस्ट तो कांस्टेंट होगा, सो द एयर नियर द ब्लेड टिप, ठीक है, ब्लेड के टिप से जो नजदीक एयर है ना, दैट विल मूव फास्टर देन द एयर विच इज नियर टू द एक्सेस, ठीक है। तो व्हेन अ फैन operating against two greater static head, तो air forced back and forward। अक्सर इस तरह होते हैं ना कि सपोज फैन की जो फ्रंट फेस है, अगर यहाँ पे जो एयर है ना उसका स्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। मीन अगर फैन के फ्रंट साइड पे प्रेशर ज्यादा है एयर का, या फैन की अगेंस्ट एयर आ रहा है, और फैन जब मूव होगा तो फैन क्या करेगा, फैन विल ट्राई टू पुश द एयर इन दिस डायरेक्शन, तो यहां पे रिसर्कुलेशन काज होगा, एंड दैट विल रिड्यूस, एंड दैट कैन रिड्यूस द एफिशिएंसी। एंड सेकंड वन क्या होगा, टर्बुलेंसेस क्रिएट होंगे। और अगर आप लोगों ने देखी हुई अक्सर फैन जब चलता है ना तो उसकी आवाजें आ जाती है, वो टक टक की आवाज शुरू हो जाती है, that is due to the turbulences। समझ आ रहा है इस पॉइंट की ना। सपोज अगर ये फैन लगा हुआ है
एक्चुअली एयर तो यहाँ से मूव आएगा और ब्लेड के जरिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नाउ सपोज अगर यहाँ पे जो प्रेशर है उसका डायरेक्शन अगेंस्ट दी फैन हो, तो यहाँ पे रीसर्कुलेशन काज होगा ब्लेड्स में, तो फिर यहाँ पे नॉइस भी क्रिएट होता है, इफिशियंसी भी रिड्यूस्ड होती है, टर्बुलेंसी जनरेट होते हैं, रीसर्कुलेशन जनरेट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए कि अक्सर जो फैन होते हैं ना वो अक्सर टक 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 की आवाज स्टार्ट कर देते हैं, तो उसी टाइम पे वहाँ पे टर्बुलेंसेस आ जाते हैं, रिसर्कुलेशंस आ जाते हैं, या फैन की जो फ्रंट फेस है वहाँ पे एयर का स्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है, तो देन द फैन अनएबल टू ऑपरेट अगेंस्ट दैट प्रेशर, तो रिसर्कुलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, recirculation can be reduced by wrapping the blade। तो अगर इसी इन्वायरमेंट, अगर इस तरह इन्वायरमेंट में आप फैन इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ पे स्टैटिक हेड जो है वो ज्यादा है या टर्बुलेंसेस की चांसेस हैं, तो आप इस तरह फैन सेलेक्ट कर लेना या आप फैन जो है उसमें ट्विस्टिंग ज्यादा कर ले, ब्लेड की ट्विस्टिंग ज्यादा कर ले, तो ये उसका फिर सोल्यूशन है। ठीक है, recirculation will be inversely proportional to alpha। अल्फा क्या है? दैट इज द ट्विस्ट ऑफ द ब्लेड, तो जितना ट्विस्ट ज्यादा होगा उतना रिसर्कुलेशन कम होगा। ठीक है, समझ आ रहा है इसकी? जी नूर इस्लाम, क्लियर? यस सर, यस सर। Now elimination of dead turbulences reduce noise and improve the efficiency। So see, whenever you are installing the fan for such agricultural processing operation where there is higher static head, where there is the chances of the recirculation, so then you can install the fan with more twist of the blade, more twist angle of the blade, so it will reduce the noise, it will improve the efficiency, and the turbulences will be eliminated। Okay, also discharge of air जो होते हैं ना वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, जिस तरह हमने डिस्कस की ना, जो प्रोपेलर फैन है उससे जो एयर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है ना वो इसी स्पाइरल डायरेक्शन में, दैट इज आल्सो कॉल्ड द एयर स्क्रू, तो एयर स्क्रू कहते हैं। एंड प्रेशर can be developed, mean up to 60 inches of pressure can be developed by a single axial flow fan at 85% efficiency। In 60 inches approximately 2 psi, लेकिन then it will be called it will be considered as a compressor। okay, इस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस की ना, लेकिन जस्ट ये है कि जो प्रोपेलर फैन है या प्रोपेलर कंप्रेसर है, through that we can generate a pressure up to 60 inches, okay, or up to 2 psi। and centrifugal fan, इसकी जो concept है या जी theory है, that is similar to the centrifugal pump, and here we will discuss the centrifugal fan similar to that of the centrifugal pump। ठीक है, now most important ये है that which type of fan will be selected। ओके, जिस तरह हमने डिस्कस की ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैन, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला, बैकवर्ड डायरेक्शन है, स्ट्रेट है, एक्सियल है, प्रोपेलर है, ट्यूब एक्सियल है, वेन एक्सियल है। सो द फॉलोइंग फैक्टर विल बी सेलेक्टेड, विल बी कंसिडर्ड कि कौन सा टाइप आपने सेलेक्ट करना है और कितने साइज का फैन आपने सेलेक्ट करना है। सो इट इज डिपेंड ऑन दिस फैक्टर। द फर्स्ट वन इज द क्वांटिटी ऑफ द एयर, कितना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आपने देखना होगा ना कि अगर ज्यादा डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है और प्रेशर कम रिक्वायर्ड है, देन यू विल हैव टू गो फॉर द प्रोपेलर फैन। ठीक है, अगर ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड है, देन यू कैन गो फॉर द सेंट्रीफ्यूगल फैन। सो सी, these are the different factors through which you can select the type। और साइज जो है वो फिर प्रेशर की बेस पे हम करते हैं कि कितना प्रेशराइज्ड एयर रिक्वायर्ड है। एस्टिमेट सिस्टम रेजिस्टेंस। ठीक है, जो सिस्टम रेजिस्टेंस है इसका मतलब क्या है? दैट इज हेड या दैट इज प्रेशर, कि कितना
या कितने प्रेशर पे हमें एयर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और उस प्रेशर में हम क्या करते हैं, सकिंग प्रेशर है, डिस्चार्ज प्रेशर है, और वहां पे जो लॉसेस होते हैं, ठीक है। सो टोटल सिस्टम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, दैट इज द हेड या दैट इज द प्रेशर अगेंस्ट विच वी हैव टू अप्लाई द एयर फॉर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन। It means that how much pressure will be required which is used against the delivery of discharge, कि कितना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है और कितने प्रेशर पे रिक्वायर्ड है, कितने रेजिस्टेंस पे रिक्वायर्ड है, कितने हेड पे रिक्वायर्ड है। तो इसकी बेस पे फिर हम सिलेक्शन करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अमाउंट ऑफ नॉइस, ठीक है। सपोज इफ यू आर इंस्टॉलिंग द फैन इन पॉपुलेटेड एरिया, तो वहाँ पे फिर नॉइस अलाउड नहीं होता ना, आप फिर ज़्यादा नॉइस जो है उससे जनरेट नहीं कर सकते। और जितना नॉइस ज़्यादा जनरेट होता है ना, वो लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होता है। नॉइस कब जनरेट होगा, जिस तरह हमने डिस्कस की ना, जब नॉइस जनरेट होगा तो इसका मतलब ये है कि टर्बुलेंसेस जनरेट हुए हैं, इसका मतलब ये है कि रिसर्कुलेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली द इफिशिएंसी विल बी अफेक्टेड, ठीक है। और घरों में फिर आप नॉइस वाले जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते। स्पेस अवेलेबल फॉर फैन इंस्टॉलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। whenever suppose you are installing the exhaust or some blowers in the storage houses, तो आपने देखना होगा ना कि कौन सा स्पेस अवेलेबल है, तो फिर कितने साइज का फैन जो है आप इंस्टॉल करेंगे। Okay, so these are the different factors through which you can decide that which type of fan will be selected based on the discharge, pressure, noise permission and space availability, 4 factors हैं। okay, इसकी बेस पे फिर हम सिलेक्शन एंड डिजाइनिंग करते हैं। नाउ फॉर द कंप्लीट design of fan or selection of fan, only this one diagram is suitable, ये काफी है उसके लिए। and if you people just understand it, इसमें 4 curves हैं। one is the pressure curve, second one is the horsepower, okay, एक discharge है और एक efficiency है। similarly like that of the centrifugal pump, ठीक है। सपोज अगर आपके पास जो फैन है उसकी व्हील डायमीटर 36 इंचेस है एंड सपोज उसकी जो रिवॉल्यूशन है वो 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। बुक में 560 लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है, दैट इज 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। सो सी डायमीटर एंड एन स्पीड ऑफ द फैन दैट इज कांस्टेंट। 36 इंच जो है वो फैन का डायमीटर है और एन जो है दैट इज द स्पीड। सपोज वो 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, ठीक है। अब देखें टोटल प्रेशर, अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज कर रहे हैं, या इस तरह भी आप कह सकते हैं, सपोज अगर मीन वेरिएशन है ना प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, तो अप टू सम लिमिट अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज कर रहे हैं उसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा, बट आफ्टर अ स्पेसिफिक पॉइंट अगर फर्दरली आप वॉल्यूम फिर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर जो है उसका डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज द टोटल प्रेशर करो, ठीक है। हॉर्स पावर करो पे आ जाए, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं ना, ज्यादा वॉल्यूम आप फैन से डिलीवर कर रहे हैं तो हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट, और उसके बाद फिर उसमें जो थोड़ा सा डिक्रीज आएगा। मीन अगर इस लिमिट के बाद आप फिर फर्दरली वॉल्यूम इंक्रीज करें उसके पावर पे फिर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इफिशिएंसी उसकी ड्रॉप हो जाएगी। इफिशिएंसी करो को देखें, अगर वॉल्यूम डिलीवरी 0 है ना, इफिशिएंसी 0 होगी। अगर ज्यादा वॉल्यूम डिलीवर कर रहे हैं तो फैन की इफिशिएंसी इंक्रीज होगी ए स्पेसिफिक लेवल तक,
अगर उससे बियॉन्ड आप ज्यादा वॉल्यूम डिलीवर कर रहे हैं तो प्रेशर का रेट ऑफ ड्रॉप ज्यादा होगा, उस वजह से इफिशिएंसी भी रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मोस्ट ऑफ द फैन कैन ऑपरेट अप टू 81%। मीन मोस्ट ऑफ द फैन की जो एफिशिएंसी होती है ना वो 81% होती है। मीन उससे आप ज्यादा एफिशिएंसी अचीव नहीं कर सकते फैन से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ए बी और सी ये तीन कर्व्स जो हैं दीज आर कॉल्ड द सिस्टम कर्व्स। मीन ये प्रैक्टिकली इंस्टॉल्ड सिस्टम है, प्रैक्टिकली इंस्टॉल्ड सिस्टम है। अब आप समझे, सपोज अगर आपको एक सिस्टम है ना, सपोज अगर ए सिस्टम है, आप सपोज 4000, ये 4 जो है ना इसके साथ ये 1000 है, ठीक है, वॉल्यूम इन 1000 मीन 4000 क्यूबिक फीट पर मिनट, 4000 क्यूबिक फीट पर मिनट एयर जो है वो आप सप्लाई कर रहे हैं। तो कितने प्रेशर पे, सपोज ये देखिए कितने प्रेशर पे, 1 इंचेस ऑफ वाटर प्रेशर पे, ठीक है। मीन कितना डिस्चार्ज आप डिलीवर कर रहे हैं, 4000 क्यूबिक फीट पर मिनट। कितने हेड है, मीन ऑपरेटिंग हेड कितना है, ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस कितना है, अगेंस्ट विच यू आर डिलीवरिंग द एयर, सपोज दैट इज 1 इंचेस ऑफ वाटर। ये दो तो आपकी रिक्वायरमेंट है ना कि आपको कितना एयर रिक्वायर्ड है और कितने प्रेशर के अगेंस्ट रिक्वायर्ड है, क्लियर। तो इसके लिए कितने हार्स पावर का फैन सेलेक्ट करना होगा, उसकी इफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। तो देखें ना ये करो है, इस करो से आप हार्स पावर करो तक एक लाइन ड्रॉ कर ले, तो यहाँ पे उसके साथ इंटरसेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखें कितने हार्स पावर का फैन रिक्वायर्ड होगा, 1.5। अच्छा, और अगर आप देखें ना यहाँ से हमने ये जो लाइन ड्रा की ये इफिशिएंसी करो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर आप देखें तो इसकी इफिशिएंसी तकरीबन 65% होगी। तो अब मतलब क्या है, अगर आपने 4000 क्यूबिक फीट पर मिनट एयर जो है वो डिलीवर करना है कितने प्रेशर पे, 1 इंच प्रेशर के अगेंस्ट, ठीक है। तो अगर आप 36 इंच डायमीटर के फैन इंस्टॉल कर लें, वो 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट पे उसका स्पीड हो तो उसको 1.5 हार्स पावर रिक्वायर्ड होगा और उसकी इफिशिएंसी 65% होगी। दैट इज द डिजाइन। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? सर जी सर जब हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं ना सर, तो प्रेशर जो है वो साथ इंक्रीज हो रही है जी, और फिर कुछ लिमिट के बाद जो है फिर दोबारा एब्रप्टली जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये क्यों इंक्रीज हो रही है पहले और फिर सी ये जो कर्व्स है ना दीज आर एक्सपेरिमेंटली ड्रॉन कर्व्स, प्रैक्टिकली ड्रॉन कर्व्स है, ठीक है। इसी जिस तरह एक इक्वेशन एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट से उसको कौन सा इक्वेशन कहते हैं, एम्पिरिकल इक्वेशन कहते हैं उसको, हाँ यस सर। अच्छा, उसका डिराइवेशन नहीं होता, ये तो आपको पता होगा ना। यस सर। तो ये जो कर्व्स है ना दीज आर द परफॉर्मेंस कर्व ऑफ बैकवर्ड कर्व ब्लेड पेन। मीन एक साइंटिस्ट ने या एक रिसर्चर ने इस तरह पेन लिया हुआ है जिसका डायमीटर क्या है 36 इंचेस है और इतनी स्पीड पे उसने एयर का वॉल्यूम चेंज किया हुआ है और प्रेशर को साथ में नोट करके प्लॉट किया हुआ है। समझ आ रहा है इस पॉइंट की? तो ये एक प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली ड्रॉन कर्व्स हैं। ये आप लोग इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं। आप कोई और टाइप ऑफ पेन सेलेक्ट कर लें
और सपोज आपके पास स्पीड और डायमीटर कांस्टेंट है, आप डिस्चार्ज को चेंज करते जाएं तो आपके पास हेड आएगा, उसको आप प्लॉट कर लें तो ये आपका रिसर्च हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये एक्सपेरिमेंटली ड्रॉन कर्व्स है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। फिर हमने इसको यूज करना है सिमिलर डिजाइनिंग के लिए कि अगर हमको सपोज इतने हेड के अगेंस्ट इतना डिस्चार्ज रिक्वायर्ड है और अगर इतनी स्पीड और इतने डायमीटर का हम फैन सेलेक्ट कर लें तो उसका हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट क्या होगा और उसकी इफिशिएंसी क्या होगी। दैट विल बी आवर डिजाइन, दैट विल बी आवर सिलेक्शन, और वो इकोनॉमिकल होगा, वो स्वेटेबल होगा। ठीक है सर, ये एफिशिएंसी की जो कर रहे हैं ना सर, ये दरमियान में प्ले कर रहे हैं ना सर, ये मतलब कांस्टेंट एफिशिएंसी जी। मीन ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसका मतलब ये है कि सपोज अगर आपकी जो डिस्चार्ज डिलीवरी है वो 6000 से तकरीबन 9700 के दरमियान हो और आपका हेड जो है हेड वो सी 1.6 से यहां तक 1.2 के दरमियान हो तो इफिशिएंसी कांस्टेंट रहेगी। समझ आ रहा है? सपोज इफ द डिस्चार्ज इज इन बिटवीन 6000 to 10,000 and head is in between 1.6 to 1.2 inches of water, then the efficiency will be maximum. समझ आ रहा है इसकी? ठीक है, अच्छा। और ये जो बी सी है ये फिर अदर सिस्टम्स हैं। ठीक है, सी ये जो एक डायग्राम है ना, इसके जरिए आप पूरा डिजाइनिंग या पूरा सिलेक्शन आप फैन कर सकते हैं। सर अच्छा आप जी दोबारा जी। सर ये बीसी जो ये सिस्टम्स है ना, ये आपने ये सिस्टम कर्व्स हैं, ठीक है, Yes. सिमिलर टू दी जिस तरह हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया था ना पंप चैप्टर में कि हमारे पास सिमिलर पंप्स होते हैं, इस तरह यहाँ पे सिमिलर फैंस हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल कर्व्स हैं, तो इन कर्व्स की बेस पे अगर आप सिलेक्शन कर लें सो दैट विल बी द सिमिलर फैन टू दैट ऑफ दीज कर्व्स फैन। तो जितने हेड और जितने डिस्चार्ज पे इस फैन का इफिशिएंसी है तो उस हेड और उस डिस्चार्ज पे आपकी सेलेक्टेड फैन का भी वही इफिशिएंसी होगा, वही पावर रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, एग्जांपल करेंगे। ये जो कर्व्स है ना, जो डार्क कर्व्स है, हाँ एज ए स्टैंडर्ड हम यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली ट्रायंगल यूज करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन रिमेंबर दैट इज फॉर दी, ये पॉइंट याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है कि दैट इज फॉर द बैकवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फैन। ये पॉइंट याद रखें। अदर करो अदर फैन के लिए फिर उनके अपनी परफॉर्मेंस करोज होंगे। ठीक है, फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट दी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना फैन सिलेक्शन, वो क्या है? डिस्चार्ज हैं, हेड हैं, नॉइस हैं, स्पेस हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक भी है। एक फैन को जब आप सेलेक्ट करेंगे ना, सो यू विल हैव टू लुक इनटू योर discharge requirement, your pressure against which you have to operate, the noise which is allowable in the area, and space availability. And also you will have to look into the economical consideration. For example, एक large fan आप install कर लें, so that will be expensive, और उसकी जाहिर बात है efficiency ज़्यादा होगी फिर। तो एक साइड पे इफिशिएंसी तो ज्यादा है लेकिन उसका कॉस्ट ज्यादा है। और सपोज सेम जॉब जो है, सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन जो है, फॉर एग्जांपल वो आप स्मॉलर फैन से कर सकते हैं, वो एक्सपेंसिव नहीं होगा और इफिशिएंसी भी उसकी कम होगी। तो आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? आप सी अगर एक जॉब है ना, प्रोसेसिंग जॉब है, सपोज वो उसके लिए आप लार्ज फैन सेलेक्ट कर लें, उसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी लेकिन एक्सपेंसिव होगा। अब सपोज सेम जॉब जो है वो आप स्मॉल फैन से कर लें, उसकी इफिशिएंसी कम होगी लेकिन कॉस्ट उसका कम होगा। तो फिर अगेन दैट विल डिपेंड व्हाट यूज, स्टेबिलिटी एंड कॉस्ट। कॉस्ट का पावर क्या है।
ऑपरेशन कॉस्ट क्या है, तो फिर हम एफिशिएंसी को नहीं देखते। एक्सपेंसिव, अगर लार्ज पेन ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू द एफिशिएंसी, तो फिर आप स्मॉलर फैन पे चले जाएं, लेस एफिशिएंसी वाले फैन पे चले जाएं। सो इकोनॉमिक कंसिडरेशन, स्पेस अवेलेबिलिटी, नॉइस परमिशन, डिस्चार्ज एंड हेड, these are the 5 factors through which you can select the fan। ठीक है, अच्छा, एंड द फैन परफॉर्मेंस, उसको फिर हम इस तरह करते हैं, इसकी जो इफिशिएंसी है, द फैन परफॉर्मेंस इन द सेम जनरल मैनर इज दैट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, वी नो दैट इफिशिएंसी इज इक्वल टू द horse power या the power which is aided into the air divided by the horsepower of the shaft। shaft का horse power कितना है और एयर को कितना हॉर्स पावर जो है इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, तो इन दोनों का जो रेशो है उसको तो हम इफिशिएंसी कहते हैं ना। तो शाफ्ट हॉर्स पावर तो हमें गिवन होता है ना कि आप कितना पावर दे रहे हैं, इनपुट पावर कितना है। अच्छा, एयर को कितना पावर एंटर हो रहा है, दैट इज इक्वल टू ग्यो गेमा एच डिवाइड बाय 33,000। क्यों जो है दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर इन क्यूबिक फीट पर मिनट, गेमा इज द यूनिट वेट ऑफ द एयर। जिस तरह हमारे पास जो है वाटर का यूनिट वेट क्या है 62.4 समथिंग, इस तरह एयर का स्पेसिफिक वेट pound per cubic feet, or against how much pressure, against how much resistance, against how much head you have to deliver this much discharge। तो एयर को इतना हॉर्स पावर एड हो जाएगा, तो कितना हॉर्स पावर आपने एयर को एड कर दी और कितना हॉर्स पावर शाफ्ट ने अप्लाई कर दी, सो ये क्या होगा, ये फैन का इफिशिएंसी होगा। ठीक है, हमारे पास दो अच्छा ये है स्पेसिफिक वेट एयर है, ये अपने पास एज अ स्टैंडर्ड नोट कर लेना, जिस तरह हमारे पास वाटर का यूनिट वेट होता है। ठीक है, अच्छा, और दो कंडीशंस होते हैं, एक स्टैटिक प्रेशर है, सी जिस तरह पंप्स में क्या होते हैं हमारे पास 3 हेड्स होते हैं ना, स्टैटिक प्रेशर, डायनामिक प्रेशर और एलिवेशन प्रेशर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एयर का एक स्टैटिक प्रेशर होगा या टोटल प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर या एक्चुअल प्रेशर या एक्चुअल एफिशिएंसी, इसको स्टैटिक एफिशिएंसी कहते हैं। स्टैटिक प्रेशर ये होता है कि व्हेन द एयर इज इन रेस्ट, तो हाउ मच प्रेशर इट विल एग्जिस्ट इन द सराउंडिंग। और एक ये है कि एक प्रेशर जो है मूव हो रहा है ना, तो उसमें वेलोसिटी भी आ जाएगी, तो फिर एक्चुअल एफिशिएंसी जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्टैटिक एफिशिएंसी। ठीक है, इसके साथ आप लोग इतना कंफ्यूज ना हो। एक प्रेशर्स की 3 टाइप्स है ना, एलिवेशन को तो अक्सर हम नेग्लेक्ट करते हैं, अगर आपका रेफरेंस डिस्टेंस सेम है तो एक हमारे पास फिर क्या आ जाते हैं, स्टैटिक प्रेशर आ जाते हैं और एक डायनामिक प्रेशर आ जाता है। तो सी स्टैटिक और डायनामिक को अगर हम प्लस कर लेना तो ये टोटल प्रेशर बन जाता है। तो एक ये कि आप स्टैटिक प्रेशर की बेस पे एफिशिएंसी फाइंड कर लें, और एक ये कि आप टोटल प्रेशर की बेस पे एफिशिएंसी फाइंड कर लें। ठीक है, तो टोटल प्रेशर जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्टैटिक प्रेशर। तो टोटल प्रेशर की जो एफिशिएंसी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन द स्टैटिक एफिशिएंसी। ठीक है, जस्ट एज अ कंसेप्चुअल पॉइंट है, ये माइंड में रखिए। एक्सक्यूज मी सर, जी सर एयर में तो ऑलवेज डायनामिक प्रेशर होगा ना, क्योंकि एयर तो स्टैटिक नहीं होती, वो तो हमेशा जो है नहीं, एयर में डायनामिक प्रेशर हम तभी कंसिडर करेंगे जब फैन आपका ऑपरेट हो रहा है और वो एयर को पुश कर रहा है ना, तो then it will add some velocity into it and we will consider only that velocity which is aided by the blades, वही हमारा फिर डायनामिक आ जाएगा। वैसे अगर एयर मूव हो रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है, उसकी डायनामिक हेड भी है, बट वो हमने ऐड नहीं किया, वो उसका नेचुरल है।
तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टैटिक प्रेशर। डायनामिक जो है हम जो मैकेनिकली ऐड कर रहे हैं थ्रू पेन थ्रू ब्लेड्स। क्लियर? यस सर, ओके सर, थैंक यू। नाज़रीन, जिस तरह हमारे पास जो है उसकी लॉस थे पंप के, सो सिमिलरली दैट कैन बी अप्लाइड हियर। ठीक है, सपोज स्पेसिफिक फैन, अगर दो पेन है ना, उनका डायमीटर कांस्टेंट है, या एक ही फैन है तो उसका डायमीटर तो एक होगा ना, तो अगर आप स्पीड चेंज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज जो है वो चेंज होगा। and there will be direct variation. N will be directly proportional to the discharge. And the ratio, suppose अगर N1 पे आपको Q1 डिस्चार्ज दे रहा है, N2 पे Q2 डिस्चार्ज दे रहा है, so the ratio between the speed will be equal to the ratio of the respective discharge. Similar concept है जिस तरह फैन में थे। Again, फैन तो एक ही है ना, तो diameter is constant. Suppose at N1 speed, if it give you H1 pressure, yeah, H1 head, and at N2 speed, it give you H2 head, then the ratio of the squares of the speed will be equal to the ratios of the heads. इसका मतलब यह है कि सपोज अगर आपके पास दो पेन है ना, दोनों की डायमीटर क्या है, सेम है। अगर ये N1 स्पीड पे H1 हेड दे रहा है और ये N2 स्पीड पे H2 हेड दे रहा है, और ये लॉ सेटिस्फाइड हो जाए, तो इन दोनों फैन को हम ज्योमेट्रिकली सिमिलर फैन कहते हैं। फिर ये पॉइंट माइंड में रखें कि ज्योमेट्रिकली सिमिलरिटी का कांसेप्ट क्या है। ठीक है, इफ देयर आर टू डिफरेंट फैन हैविंग सेम डायमीटर बट ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्पीड, तो जाहिर बात है उनका हेड भी डिफरेंट होगा। नाउ if the ratio of the square of the speed is equal to the ratios of the head, then these two fans will be called similar fan. Similarly, if this law is applied या satisfied, again they will be similar fan. जी सर ये भी वो मोटर की तरह है ना? एग्जैक्टली, वो सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन ये लॉ जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फैन के लिए है, एक्सियल, प्रोपेलर और ये जो क्रॉस है उन पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये सेंट्रीफ्यूगल फैन, बिकॉज वहाँ पे एयर का मूवमेंट और एंट्री और लीव जो है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द पंप, तो सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड। आल्सो सपोज इफ वी हैव टू फैन, ओके, and both fans suppose operate at a constant speed, but इसका डायमीटर D1 है और इसका डायमीटर D2 है। सपोज D1 डायमीटर पे Q1 डिस्चार्ज दे रहा है और D2 डायमीटर पे Q2 डिस्चार्ज दे रहा है। And for example, if this law is satisfied, then it will be called geometrically similar fan. ठीक है, similarly ये है square of the diameter, the ratio of the square of the diameter will be equal to the ratios of the heads. The power, the fifth power, yeah, the ratios of the fifth power of diameter will be equal to the ratios of horsepower requirement. समझ आ रहे हैं इन लॉस की? डिफिकल्टी तो नहीं है जी?